Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Grade 9 is time to a biology lecture. Dear student, kindly getting a COVID-19 vaccine. Today is 1st June 2021 and day is Tuesday. Chapter number 4, that is cell and tissues. Today our topic of discussion is passage of molecule into and out of the cell. Open your book page number 66 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our lesson objective is to discuss the passage of molecule between the cell and passive transport of molecules. Passage of molecule between into and out of the cell basically is through the cell membrane, because cell membrane act as a barrier mostly, but not all the molecules. That's why cell membrane are called semi-permeable membrane. Because cell membrane maintain the equilibrium inside the cell as well as outside the cell because of the exchanging material within the cell and also against the environment according to its need. Basically, it's through a two type of transport, that is passive transport and active transport. Passive transport do not need energy, while active transport need energy. Passive transport by four process: diffusion, facilitated diffusion, osmosis, and filtration. Passive transport. We can define passive transport as a transport we do not need any energy to exchange the molecules across the membrane from one side to another. The transport in which a cell doesn't expend energy when molecule diffuse across its membrane, it's called passive transport. The first phenomenon in passive transport, that is diffusion. Diffusion बेसिकली जब कोई भी मालिक्यूल -273 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर होता है तो वो मूवमेंट शो करते हैं. ये मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन. It may be a lower concentration gradient and toward concentration gradient and against concentration gradient. These are the two different terms. Diffusion is the movement of molecule from an area of high concentration of the area of low concentration. ये ऐसी मूवमेंट है डिफ्यूजन की, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं और ये तब तक मूवमेंट शो करते हैं जब दोनों में इक्वल कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स की नहीं हो जाती. तब तक ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते रहते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूजन की. देखें ये पहले क्या होगा कि मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता आएगा. पहले एक साइड पे थोड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसने अपनी एक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन कर ली है, उसमें दोनों साइड पे इक्वल मॉलिक्यूल है. अगर हम एग्जांपल लें गैसेस एक्सचेंज की, जो फिशेस वगैरह में भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं थ्रू गिल्स और लंग्स होती हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये भी डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है. इसके अलावा मूवमेंट जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ल्यूमन एंड इनटू ब्लड कैपिलरीज of villi and another example of diffusion. But it doesn't expand in the use of energy because it's a type of passive transport. Next one is a facilitated diffusion. Facilitated diffusion, many molecules do not diffuse freely across a cell membrane because of their size, such as charge, and molecule taken into and out of the cell of transport protein by cell membrane. So when the movement is done through the transport of protein, it is called as facilitated diffusion. The definition is the movement of a substance from higher to a lower concentration with the help of transport protein is called facilitated diffusion. डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैरियर प्रोटीन है इसमें और सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन चैनल्स हैं. जो मिड में जो है ये प्रोटीन अटैच है जिससे डिफरेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. तो जो रेट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यह हायर होता है देन सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन इसमें भी कोई एनर्जी के एक्सपेंडिचर्स नहीं होते बिकॉज ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है. नेक्स्ट वन है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ अ लेसर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन. आपने केमिस्ट्री में भी सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी. इसके अलावा आपने डिफ्यूजन और एफ्यूजन की भी काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी. ऑस्मोसिस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो बेसिकली इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. द डेफिनेशन इज द ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू अ
सोल्यूशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज आपको मैंने बताया ये सारा जो फिनोमेना है ये सेल मेम्ब्रेन में है। तो अब भी ऑस्मोसिस को हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक टर्म स्टडी करते हैं, डेट इज़ टोनिसिटी। Tonicity is basically a relative concentration of solute in the solution being compared like a hypertonic, hypotonic and isotonic solution. Solute और solvent आपने पढ़े तो बेसिकली हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मोर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है, जबकि आइसोटोनिक में इक्वल कंसनट्रेशन होती है सोल्यूट की। अगर देखें नीचे डायग्राम में देखें तो शुगर का सोल्यूशन जो डी पे है इसमें 70% शुगर का सोल्यूशन है, तो इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्या है, एग्जांपल है हाइपरटोनिक की। और सी एंड डी में देखिए दोनों में 40% शुगर की सोल्यूशन है, तो ये दोनों एग्जांपल हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बिकॉज रिलेटिवली ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन की बिकॉज इसमें इक्वल कंसनट्रेशन है सोल्यूट की। और ए वाली में अगर देखें आप तो ये 30% शुगर का सोल्यूशन है, रिलेटिवली इसमें लेस है सोल्यूट की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ऑस्मोसिस बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है। लाइक अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये जो फर्स्ट वाली साइड पे देखेंगे इधर जो है कम कंसनट्रेशन है सोल्यूट की, क्या है ये प्योर वाटर है, और दूसरी जिसमें ज़्यादा है मालिक्यूल्स ये इम्प्योर वाटर है। बेसिकली क्या है नेचर में कि हमें जो प्योर वाटर है वो नहीं मिलता, हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो रिलेटिवली इम्प्योर वाटर है। तो ऑस्मोसिस क्या है ये तब तक डायग्राम में देखें कि क्या हुआ है कि जो सोल्यूशन है लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर गया। अगर जब ये फिनोमेना हो चुका है आप देखते हैं कि सोल्यूट जो कंसनट्रेशन है सोल्यूट की वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन वाटर जो है वो उसकी जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम बेसिक में हम स्टडी करेंगे जब हम एनिमल और प्लांट सेल्स है अगर हम डिफरेंट सोल्यूशंस में रखते हैं, लाइक अगर ग्लूकोज सोल्यूशन में रखते हैं कुछ भी वाटर के किसी सोल्यूशन में भी रखते हैं तो इन पे जो इफ़ेक्ट है वो क्या इफ़ेक्ट होगा, वाटर का जो भी इनटेक या आउटटेक होगा वो वाटर पे वो सेल पे क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, हम एनिमल सेल्स में लेंगे हमने रेड ब्लड सेल्स। तो फर्स्ट वाले में क्या है कि जो सेल्स हैं वाटर जो है वो बाहर जो है वो ज़्यादा क्या है वो बाहर एक्सक्रीट हो रहा है वाटर। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसमें वाटर लूज़ हो रहा है, ये क्या होगा कि जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब ये सुकड़ जाएगा बिकॉज जो सारा उसका अंदर से वाटर है वो तो उसने लूज़ कर दिया है। इसलिए एनिमल सेल्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव एंट्री जो वाटर की ना हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, लाइक सी वाटर की अगर हम एग्जांपल लें। तो देन जो सेकंड पे एग्जांपल है आइसोटोनिक सोल्यूशन पे, इस पे क्या है कि जो देखें एरो शो कर रहे हैं कि जितना वाटर एंटर हो रहा है इतना जो है वो वाटर बाहर भी आ रहा है, तो इस पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि वाटर एंटर होगा फिर उतना ही बाहर जाएगा, तो इक्वल कंडीशंस हैं। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में ये कि आइसोटोनिक में कोई भी एनिमल सेल्स पे इफेक्ट नहीं होगा। देन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि वाटर जो है कॉन्टीन्यूसली एंटर होता जा रहा है, तो जब कॉन्टीन्यूसली वाटर एंटर होगा सेल जो है वो स्वेल कर जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और ये ओवर फिल्ड जब बैलून की टाइप हो जाएगी ये रप्चर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लांट सेल पे इसका इफेक्ट देखें हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि सबसे पहले देखिए कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल है उसमें से वाटर लूज़ होता जा रहा है। जब सारा वैक्यूल में से वाटर लूज़ हो जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा बिकॉज जो वैक्यूल्स में है वो सारा वाटर क्या है उसने लूज़ कर दिया है। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं बिकॉज लो कंसनट्रेशन होती है सोल्यूट की इन एक्सेस टू फ्लूइड देन सेल। तो इसमें क्या है वाटर जो है वो कंटिन्यूसली, थर्ड कंडीशन हाइपोटोनिक पे देखिए कंटिन्यूसली जो है वाटर एंटर होता रहेगा। जब कंटिन्यूसली वाटर एंटर होगा तो सेल क्या है वो स्वेल हो जाएगा और सेल एक्सपेंड हो जाएगा, उसका वैक्यूल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेस हो जाएगा अगेंस्ट द इंटीरियर सेल वॉल। तो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल है प्लांट्स रप्चर नहीं होगा बल्कि इनसाइड पे ये रिजिड हो जाएगा। इस कंडीशन में
कि ये आउटवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करेगा सेल वॉल पे, और सेल वॉल वो इंटरनल वाटर पे भी प्रेशर होगा, ऑर्गेनाइज पे प्रेशर जाएगा, वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर करेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो है आउटसाइड सेल वॉल पे प्रेशर करेंगे। तो जो ये प्रेशर होगा इसे हम टर्गर प्रेशर करेंगे और इस फिनोमेना को हम टर्गर बोलेंगे। और सारी जो कंडीशन होगी ये टर्जिट कंडीशन है, और इस कंडीशन को मोस्टली प्लांट सेल प्रेफर करते हैं। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में देखें ये कि दोनों कंडीशन में आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में अपटेक और आउटटेक जो है वाटर की वो इक्वली है, तो ये सेल इसमें सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे। अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एक होता है कि अगर प्लांट सेल क्या है लूज़ करता है वाटर और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और जो साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। आपको प्लाज्मोलाइसिस और टर्गर प्रेशर दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है अगर ऑस्मोसिस और गॉड सेल्स में देखें तो जो स्टोमेटा है वो डे टाइम पे ओपन होते हैं जबकि नाइट टाइम पे वो क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपोटोनिक देन नियर बाय एपिडर्मल सेल। देखिए ये अगर देखें सबसे पहले ये गॉड सेल क्या है, इसमें स्टोमेटा ओपन है, सेल्स जो हैं वो स्वॉलन है, वाटर एंटर करता है और सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं। ये इस कंडीशन में सेल जो हैं वो रिजिड होते हैं, बाउट शेप होते हैं एंड इनमें पोर्स क्रिएट होते हैं। जबकि आप नाइट में कंडीशन में देखें तो इधर स्टोमेटा क्लोज हैं, लो सल्यूट की कंसनट्रेशन है, गार्ड सेल्स में वाटर क्या करेगा लीव कर देगा एंड सेल क्या फ्लैसिड हो जाएगा। लेकिन दोनों गार्ड सेल जो है वो रेस्ट अगेन वन एंड अदर होते हैं, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की इसमें परफॉर्म होती है, और स्टोमेटा की ओपनिंग और जो क्लोजिंग होती है वो थ्रू गॉड सेल्स होती है। ओके स्टूडेंट, जो होमवर्क टास्क इज रीड आउट एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर, लर्न एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन and differentiate between turgor pressure and plasmolysis, define osmosis. It's the important lecture related to MCQs and short question. Listen and learn the lecture carefully. Take care of yourself. Allah Hafiz.